Forests are green, ocean are blue. Forests are green, oceans are blue. Keep the earth clean for me and you. सो इस नोट के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं, जो कि है आपका इंजीनियरिंग इन डेली लाइफ, जो कि एक बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आप बहुत ही सारी माइन्यूट माइन्यूट चीज़ें इस सेशन से सीखने वाले हैं गाइस। सो मैं खेमेंद्र आपका स्वागत करता हूँ आपके फेवरेट चैनल क्रिएट्रिक्स पे। और फेवरेट चैनल क्रिएट्रिक्स इसलिए क्योंकि थैंक यू सो मच कि आपके सभी एफर्ट्स की वजह से आपका जो फेवरेट चैनल है ये 100K सब्सक्राइबर को टच करने वाला है और टच कर चुका है ऑलमोस्ट। Okay, so thank you so much to all of you, to all of those students who are here, and please share this video, share this channel with your friends also, so that the other student can also join, can also be part of the marathon. Okay guys, so आज का जो सेशन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है आपके लिए। कई सारी चीजें हैं जो आपने देखी होगी, सोची होगी, समझी होगी, पर पता नहीं होगा क्यों होगा। भाई मेरे को तो मतलब ही नहीं है इन सब चीजों से, दुनिया में क्या चल रहा है मुझे क्या मतलब। लेकिन लेकिन अब मैं आपको आज बिलीव करा के रहूंगा कि आपका मतलब डेफिनेटली उन चीजों से है। हमें अपनी अर्थ को सेव करके रखना है और अर्थ को सेव करके रखना बहुत जरूरी है आज की तारीख में। ठीक है गाइस, तो मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो लिंक को शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसको वीडियो लिंक को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर, चैट बॉक्स में लिखकर बताइए कि कैसा फील कर रहे हैं। आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेकर आ रहा हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स पे। इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जर्स किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से उन्हें डिजाइन किया जाता है, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट हम डालते हैं उसके अंदर, एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कितना बड़ा पार्ट रोल कर रही है आज की लाइफ में, हमारी लाइफ को स्टेबल बनाने के लिए, हमारी पूरी अर्थ को स्टेबल बनाने के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कितने एफर्ट डाल रही है, वो मैं आज आपको फील कराना चाहता हूँ आज के मेरे इस सेशन से। सो guys, please share this session with your friends so that the other student can also be part of this very special session for you. This is a very special session and I'm sure you are going to like it. Before starting, I just introduce myself. My name is Khemendra, and I'm tech from MNIT Jaipur, and I have 2 years of teaching experience in the GATE and ESC domain, and 1 year of job experience in the central government department. I used to teach basically these three subjects, and I'm also giving the SSC JE and test series for in different kind of places. I am teaching in Plus, I am teaching in special classes. There are most of the places where I am teaching. In MNIT, I was the only one. I was the only one in the power electronics domain to have a journal paper, to have a research journal paper. I was the only one in 3-4 years of power electronics in the college. Okay, so this is about me. Okay, so first of all, if you wanted to take the subscription in the Unacademy Plus, you can take it by using my code KHEM Live. My code is what? KHEM, KHEM Live. So in that today's session, in the end, I will just show you what my work is and what I have done in the research paper, and what my circuitry is basically, and how I am able to get the research paper within a very renowned publication. Clear? So in the end, I will just tell you that thing also. Don't worry about it. Firstly, we will start with our team introduction. Ankit sir, Vishal sir, Rahul sir, Shankar sir, Kamesh sir, Prameet sir, myself, this is myself, Khemendra, Ajay sir, Rajkumar sir, and Sharma sir. These all the teachers which are here, and we are providing a best education to you in this platform. Okay, guys. So we are moving ahead. Just a few points I will discuss, and then I will go to my session directly. Clear? So what we will provide in the Unacademy Plus subscription, we provide the daily live classes to you. The crash courses are available. That suppose I am running right now a crash course for NLC UPPCL examination, and I am continuing the electrical machines. The same course is same batch course. I am doing this batch course with the Rahul sir, and he is running the power system for you. For as we believe that for different kind of examination, different preparation is needed. So this is why we are providing a crash course for it. Rank improvement batches will be there. Rank improvement, if कोई student है आपका दोस्त है या फिर आप है, गेट में अच्छा स्कोर आया पर इतना अच्छा नहीं आया कि आईआईटी मिल जाए या फिर पीएसयू मिल जाए, तो उनके लिए रैंक इम्प्रूवमेंट बैच भी हम लेकर आ रहे हैं। तो बहुत ही शानदार होने वाला है आपके लिए भी।
दोनों लैंग्वेज में, इन इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी भाषा में भी बिल्कुल आपके लिए कोर्सेज अवेलेबल है. सो यू नीड नॉट टू वरी बिकॉज नाउ लैंग्वेज इज नॉट द बैरियर. Doubt clearing session after every 3 class. You have the doubt clearing session in Unacademy Plus. You have the weekly test. The weekly test you have every week. You will have the quizzes. Don't worry about it. If you want to take the subscription, again I am telling you, you can choose by this code came live. You can take it. In the best courses of Unacademy Plus, we have the one of the two finest batches what we are running right now. Ankit sir and Vishal sir is taking this course, and Negi sir is taking course here. So this is the interface. I just wanted to let you know that what is the interface, in किस तरीके से इस चीज को पढ़ाया जाता है और कितने रियलिस्टिक वे में चीजों को बताया जाता है इन द प्लस सब्सक्रिप्शन. इन द प्लस सब्सक्रिप्शन कितने रियलिस्टिक वे में चीजों को पढ़ाया जाता है और बताया जाता है. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन एंड इसको आप मिस नहीं करना चाहेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको प्लस सब्सक्रिप्शन जरूर लेना चाहिए. ये देखिए, बिल्कुल डाउट सॉल्विंग इन द रियल टाइम में डाउट सॉल्विंग होती है. अभी मैं स्पेशल सेशंस करता हूँ यहाँ पे, मैं 40 क्वेश्चंस एक घंटे में पूछता हूँ एंड डेफिनेटली स्टूडेंट्स आर लविंग इट. मोर एंड मोर स्टूडेंट्स आर कमिंग एंड दे आर एंजॉयिंग इट. दे आर टेकिंग इट एज इट इज देयर एग्जामिनेशन. अभी जैसे मैंने DMRC के लिए प्रिपेयर करा रहा था, मैंने एक घंटे में रिसेंटली 40 क्वेश्चन करा है. इतने ही एग्जामिनेशन में भी करने होते हैं. स्टूडेंट आर गेटिंग मार्क्स 25. सो मैंने उनको बोला यू नीड टू इम्प्रूव योर मार्क्स इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो भी मैं लेने वाला हूँ. और इसी तरीके से डाउट सॉल्विंग भी रन टाइम में ही बच्चे ने डाउट डाला है और सर ने उसी टाइम पे डाउट को सॉल्व किया है. सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच यू शुड कीप इन योर माइंड. अब आ जाते हैं हमारे सेशन के ऊपर. जरा बात करते हैं पृथ्वी की बात करते हैं जी. पृथ्वी बड़ी खराब हो रखी है, उसको हमको साफ करने की जरूरत है. एक बहुत ही बड़ी समस्या जो हमारे जिंदगी में आ रखी है वो क्या है ग्लोबल वार्मिंग ने हमारी जो लाइफ है उसको एक तरीके से पटरी से उतार ही दिया है. काफी ज्यादा मात्रा में एयर पॉल्यूशन हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. पृथ्वी की ऊष्मा का बढ़ना इज द ग्लोबल वार्मिंग. हिंदी में बता देता हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा. पृथ्वी की ऊष्मा का बढ़ जाना इज माई ग्लोबल वार्मिंग. और ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे कारण में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है ये वाला. ये देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे बड़ी बड़ी चिमनियां लगी है, उनमें से धुआं निकले जा रहा है. इंडिया में या फिर वर्ल्ड में भी वी आर यूजिंग दीज चिमनीज एंड दीज प्रोडक्शन और ऑयल और काफी सारी चीजें. जो पॉल्यूशन है उस बहुत ज्यादा बिल्कुल अनकंट्रोल्ड हो चुका है. कई बार आपने न्यूज़ भी सुनी होगी भाई कि इस कंट्री ने जो पेरिस एग्रीमेंट है उसको अलग कर दिया, इससे अलग हो गए क्योंकि दूसरी कंट्री उसको फॉलो नहीं कर रही. तो इस तरीके की चीजें चलती रहती है. आई डोंट वरी अबाउट, आई एम नॉट गोइंग आउट ऑफ द बॉक्स. आई विल जस्ट लिंक ऑल दीज थिंग्स विद द परफेक्ट पॉइंट. ओके, डोंट वरी. आप सोच रहे होगे कि सर कैसे पॉल्यूशन पे चले गए, आगे देखो पॉल्यूशन को किस तरीके से जोड़ेंगे आपके लिए. डोंट वरी अबाउट. थोड़ा पॉल्यूशन की बात और कर लेते हैं. देखो इतनी ज्यादा मात्रा में जब ये चिमनियां धुआं फेंकेगी तो कितना ज्यादा पॉल्यूशन होगा और कितना ग्लोबल वार्मिंग होगा. कभी सोचा है कितनी ज्यादा पॉल्यूशन हो चुकी है अब तक, और उस पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया है एज ए इंजीनियर. हमने किया क्या है? हमने कुछ भी नहीं किया है. लेकिन अब टाइम है कि अब आगे बढ़कर उस चीज को समझने का कि कैसे रियल लाइफ को हम इंजीनियरिंग की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से उसको बेहतर बना सकते हैं. आगे चलते हैं और चीज समझ में आ जाएगी. जरा ये देखो व्हीकुलर पॉल्यूशन. व्हीकल्स में इतना ज्यादा कंबक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है. आप सबको पता है डीजल जो जनरेटेड आजकल कई शहर ऐसे है, दिल्ली में 10 साल से पुराने जो डीजल के जो वाहन है उनको बोल दिया भैया अब नहीं, बस हो गया. तो बड़ी महंगी कारें सस्ते में बिक रही है. तो दिस इज ऑल्सो पॉइंट विच इज वर्थ मेंशनिंग. और इसकी वजह से पॉल्यूशन का हाल बहुत ही बेहाल हो चुका है, बहुत ही बेहाल. सो इस तरीके की चीजों को किस तरीके से डील किया जाए, किस तरीके से कम किया जाए, दिस इज शुड बी अवर टारगेट. एंड इस तरीके से जैसे देखो कितना पॉल्यूशन हो रहा है, देखो ये चलता जा रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करा जा रहा है. यही चीज कहानी है. इसको सॉल्यूशन की तरफ पे जाना पड़ेगा. बिकॉज अगर हमें कुछ सॉल्यूशन की तरफ देखना है तो हमको पहले प्रॉब्लम को समझना होगा.
प्रॉब्लम को पहले समझना होगा कि प्रॉब्लम क्या बोल रही है और प्रॉब्लम किस तरीके से डील कर रही है, उसी तरीके से उसी राह में चलते चलते हमें उसके सॉल्यूशन को भी निकालना होगा। थोड़ा सा एक और एग्जांपल बता देता हूँ कि किस किस तरीके से कहानी चलती है आगे। ये हमारा क्या है भैया, माउंट एवरेस्ट। आपको पता है एक सेशन देखा था मैंने, IIT बॉम्बे के प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे बताया था ना, तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि भाई साहब आपका जो माउंट एवरेस्ट है ये हर साल ये 10 सेंटीमीटर कम हो जा रहा है। क्यों कम हो जा रहा है? बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। दिस माउंट एवरेस्ट इज रिड्यूसिंग 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर because of the effect of global warming. See the impact what global warming is putting in our life, because a huge Mount Everest is reducing by 10 centimeter is a very huge thing. So you cannot expect, and we should take some kind of steps for this. Okay, एक बार और कहानी सुनो, एक बार और हल्का सा ये दिखाता हूँ तुमको। पता है क्या है ये? कोई एक बार जरा कमेंट बॉक्स में करके बताओ। अभी ये इमेज आई थी। दिस इज द धौलाधर रेंज विजिबल फ्रॉम जालंधर। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दीज डेज इन कोरोना, vehicles are not running. As the vehicles are not running, the Jalandhar people are so surprised to see the धौलाधर range from their roofs. छतों के ऊपर से धौलाधर रेंज उनको दिखे जा रही है, जो कि पीढ़ियों ने नहीं देखी थी। पीढ़ियों पहले लोग बोलते थे कि दिखती थी, लेकिन क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो गया था वो विजिबल ही नहीं हो रही थी। इतनी ज्यादा परेशानी को हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर? एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इतनी देर से कहानी सुना रहा हूँ, आप भी बोल रहे होगे सर बहुत सारी कहानी सुना रहे हो, आप तो पॉल्यूशन की क्लास ले रहे हो, ये इलेक्ट्रिकल की क्लास है या एनवायरनमेंट की, समझ में नहीं आ रहा। तो लेकिन अभी बता रहा हूँ कि इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा कुछ ना कुछ स्टेप तो बनता है, कुछ ना कुछ स्टेप तो बनता है। what we can do, this is our solution to make this thing happen and to make the oil combustion जो हो रहा है हमारा पूरे वर्ल्ड में जो ऑयल कंबक्शन हो रहा है, उस कंबक्शन को कम करने के लिए दिस इज द वन स्टॉप सोल्यूशन जो हमने देखा है। द नेम ऑफ दिस सोल्यूशन जो आपको आराम से सामने से दिख रही है मेरी गाड़ी चार्ज होते हुए, ये देखिए मेरी गाड़ी चार्ज हो रही है। This is the electric vehicle. To solve this thing completely, we have opted, and this electric vehicle concept is incomplete without learning the power electronics. So this is the advantage of power electronics which it is providing you to you, कि आप उसको इस्तेमाल करके इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने पहले बताई है, देखिए इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, इनसे आप बच सकते हैं और अपनी जो पृथ्वी है उसको भी बचा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो जल्दी से एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए और इस सेशन को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं यहाँ पे। तो ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब चलो, ये तो सर हम समझ गए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अच्छा है, पर अच्छा तो है, पर करे कैसे, काम कैसे करें? काम ऐसे करेंगे भैया, हमको चाहिए बैटरी। हमको चाहिए बैटरी। कौन सी बैटरी चाहिए भाई? दो अलग अलग टाइप की बैटरी होती है। लिथियम आयन बैटरी यूज करते हैं सबसे पहले, तो लिथियम आयन बैटरी यूज करते हैं। मैं लिख देता हूँ, चलो अगर बाद में कभी इस चीज को देखो तो आपको पता चल जाएगा कि सर ने ये बताया था। लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी। जब लिथियम आयन बैटरी की अगर मैं बात करूंगा तो उसको चार्ज करना पड़ेगा, और बैटरी को चार्ज करने के लिए मुझे क्या चाहिए? क्या मेरी बैटरी सीधे एसी से चार्ज हो जाएगी सर? नहीं भैया नहीं, चार्ज बैटरी एसी से चार्ज नहीं हो सकती, क्योंकि एसी में तो बाई डायरेक्शनल करंट फ्लो होता है। अगर बाई डायरेक्शनल करंट फ्लो होगा तो एक साइकिल में चार्ज होगी, दूसरी साइकिल में डिस्चार्ज हो जाएगी। इसीलिए जो बैटरी है ये मेरी एसी पे तो चार्ज नहीं हो सकती। बैटरी मेरी एसी पे तो चार्ज नहीं हो सकती, किस पे चार्ज होगी? बैटरी विल चार्ज ऑन direct current. Battery will charge only on the direct current. This is the basic concept which we have, which we know, which we have understood. ये मैंने इंटरव्यू सेशन लिया था, उसमें मैंने यही क्वेश्चन लिया था किसी तरीके से। तो अब उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। चलो ठीक है, तो इतना तो हम समझ गए भाई, बैटरी विल चार्ज ऑन द डायरेक्ट करंट। सर इतना तो मैं समझ गया हूँ, बिल्कुल बड़े अच्छे से मुझे समझ में आ चुका है। अब जरा आगे चलते हैं। अब एक बार जरा आंखें बंद करके सोचो, मुझे चार्जर के बारे में जानना है। मुझे चार्जर के बारे में जानना है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर किस किस टाइप का हो सकता है? अलग अलग टाइप का हो सकता है। इस टाइप का भी हो सकता है कि भैया मैं गाड़ी चला के गया हूँ,
गाड़ी चला के गया हूँ, मैंने देखा भैया वहां पे जगह है चार्ज करने की, मैंने निकाला, चार्ज कर दिया, पैसा दे दिया, बात खत्म। वो भी इसी तरीके का भी हो सकता है। यहाँ पर देखो बिल्कुल मैं यहाँ पे आया, मैंने कनेक्ट किया मेरी चार्जर को मेरी गाड़ी से, गाड़ी को पूरा चार्ज कर दिया और मैं चला गया। दिस इज द इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर, जो मेरे अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। अब बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ आ रहा है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यूज अभी बस थोड़ी देर में आ रहे हैं वहां पे। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई मेरी इलेक्ट्रिकल चार्जर। भाई जो चार्जर है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझना पड़ेगा, और उस चार्जर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो मेरी बैटरी है, बैटरी को चार्ज करना है। बैटरी को चार्ज किस लिए करना है? क्योंकि मुझे गाड़ी को चलाना है। गाड़ी को क्यों चलाना है? क्योंकि भाई जो फ्यूल कंजम्पशन है उससे ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, मुझे कम पॉल्यूशन चाहिए। अब इसलिए मैं बैटरी की बिहेवियर को समझने के लिए मैं सबसे आसान चार्जर, दुनिया का सबसे आसान चार्जर, ये मेरा सबसे आसान चार्जर है। एक बार मैं इसके बिहेवियर को समझने की कोशिश करता हूँ। ये बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पे, बिल्कुल छोटा सा है ये। कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, बड़ी अच्छी कंपनी है, बड़ा अच्छा चलता है इसका फोन और बहुत ही सुंदर फोन है। और ये है मेरा चार्जर। अब इस चार्जर के अंदर क्या क्या कहानी है एक बार जरा पहले ये समझो, तो बेसिक ऑपरेशन समझ में आ जाएगा चार्जर में होता क्या है। उसके बाद हम आएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर पे। बेसिक ऑपरेशन समझ में आ जाएगा कि चार्जर का होता क्या है। ये रहा छुटका सा, देखो ये रहा बिल्कुल, और बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही एक और मिल गया मुझे। देखो ये रहा मेरा प्यारा सा, ये मेरा लैपटॉप चार्जर, लैपटॉप का चार्जर है ये भी बिल्कुल इसमें सेम कॉन्सेप्ट है। ये बेचारा और वो सफेद वाला बेचारा, दोनों की सेम कहानी है। एक ही माँ के दो बेटे, बस एक चार्ज करेगा लैपटॉप का और एक चार्ज करेगा मेरे मोबाइल को। तो एक बार मोबाइल की कहानी सुन लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं हम मेरे इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। मोबाइल की कहानी समझो जरा आराम से। इधर देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एसी सप्लाई। एसी सप्लाई लिखी है। एसी सप्लाई के बाद क्या लगता है? ट्रांसफार्मर। एसी सप्लाई के बाद लगता है मेरा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या करता है अभी बता दो। ट्रांसफार्मर करता है, जो एसी सप्लाई मेरी कितनी आ रही है 230 वोल्ट, 230 वोल्ट आरएमएस, उसको वो चेंज कर देता है कम वैल्यू ऑफ वोल्टेज में। कितने कम वैल्यू ऑफ वोल्टेज? सपोज करो मैंने चेंज कर दिया 9 वोल्ट। दिस इज व्हाट? आरएमएस, 9 volt RMS. After this, what is connected here? Rectifier. What does rectifier does? If suppose the scale, suppose करो यहाँ पे waveform कैसी है, इस तरीके से है। After connection of rectifier, what will happen? After connection of rectifier, what will happen? This waveform became like this. This is the full wave rectifier, keep in mind. Now after this what will happen? After this the regulator is applied. Now what is the regulator, sir? It will give the constant value of, it will give the constant value of voltage at the output. It will give the constant value of voltage at the output. sir ऐसे कौन कौन से regulator होते हैं दुनिया में? बहुत सारे regulator होते हैं भैया। एक होता है 7805 which will give the plus 5 volt at the output. एक होता है 7812 which will give plus 12 volt at the output. एक होता है 7905 which will give minus 5 volt at the output. एक होता है 7912 which will give minus 12 volt at the output. These are the values of regulator. These are the IC regulator which will give the constant value of output. अब उसके बाद क्या लगा सर? ये क्या लगा दिया? फिल्टर क्या होता है? फिल्टर होता है आपकी सर्किटरी में, आपकी सर्किटरी में एक कैपेसिटर, इट इज अ डीसी कैपेसिटर। इट इज अ डीसी कैपेसिटर, बड़ा सा होता है, छोटा सा सिलेंडर टाइप का होता है। It is a DC capacitor. What does the DC capacitor do? It will take all the AC component present after the regulation. ऐसा तो नहीं हो सकता रेगुलेटर बिल्कुल ही 100% एफिशिएंसी दे दे, नहीं हो सकता ना। हर चीज की एफिशिएंसी की लिमिट होती है, हर चीज की एफिशिएंसी की लिमिट होती है, तो रेगुलेटर की भी एफिशिएंसी की कुछ ना कुछ लिमिट है। अब रेगुलेटर ये तो नहीं हो सकता कि 100% एफिशिएंसी दे दे, इसीलिए हमने लगा दिया इस फिल्टर को। इस फिल्टर को लगाने के बाद मोस्टली हमारे पास डीसी आ जाती है, और उसको मैं ले लेता हूं मेरे आउटपुट पे। आउटपुट कितना आ गया? अगर मैंने 7805 लगाया, डिपेंडिंग ऑन द करंट 5 वोल्ट और 2 एम्पियर। और अब अगर जरा इसके पीछे जाके देखोगे ना, ये 5, ये जो छोटा वाला आपका चार्जर है, इसको अगर जूम करके देखोगे, आउटपुट पे लिखा है 5 वोल्ट 2 एम्पियर। ये पूरी कहानी है। अब इस पूरी कहानी को सर्किट के फॉर्म में समझ लो। यहाँ पे पूरी कहानी बिल्कुल सिंपल, वही कहानी सर्किट के फॉर्म में यहाँ पे बन के आ गई है मेरे पास। कैसे आ गई सर? क्या कर दिया जादू आपने, जरा समझो। यहाँ पे 230 यहाँ पर है आरएमएस, एक ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर दिया। ट्रांसफार्मर 909 का है, दिस इज 9, दिस इज 0, दिस इज 9। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर ने अपनी सप्लाई किसको दे दी? फुल ब्रिज रेक्टिफायर को। फुल ब्रिज रेक्टिफायर के बाद ये कैसी सप्लाई हो गई? इस तरीके की।
फुल ब्रिज रेक्टिफायर के बाद कैसी सप्लाई हो गई है, इस तरीके की, ठीक है। जब ये इस तरीके की सप्लाई हो गई उसके बाद क्या लगा, एक कैपेसिटर यहाँ लगा, डेट विल आल्सो एक्ट एज अ फिल्टर। तो मैंने उनको दोनों को कंबाइन करके इसी जगह फिल्टर दिखा दिया। ये है मेरा रेगुलेटर 7805। 7805 क्या देगा, 5 वोल्ट मेरी आउटपुट देगा, 5 वोल्ट आउटपुट देगा। अब इसको ये चेंज कर देगा, फिल्टर एसी कंपोनेंट विल गो टू दिस पोर्शन, एंड यहां से जितना भी कंपोनेंट मेरा एसी का बचेगा, देखो इस तरीके से होगा ये, इस तरीके से होने के बाद मोस्ट ऑफ द एसी कंपोनेंट विल गो टू दिस पोर्शन देखो यहाँ पर, एंड यहाँ पर मेरा आउटपुट पे क्या बचेगा, एक कांस्टेंट डीसी वोल्टेज बचेगी आउटपुट पे। बहुत बार कभी लेबोरेटरी में जाना, पावर इलेक्ट्रॉनिक लेबोरेटरी में बहुत सारे सर्किट मिल जाएंगे इस तरीके से, बड़ा ही मजा आता है इन सबको बनाने में। तो कभी भी इस चीजों में फंसो तो मुझे बता देना, ठीक है। बड़े ही आसानी से इन चीजों को डील कर सकते हैं हम। एंड आई रियली होप दिस इज द बेसिक चार्जर सर्किट, दिस इज द बेसिक चार्जर सर्किट। अब आ रहे हैं डिफिकल्ट वाले पे, अब आ रहे हैं डिफिकल्ट वाले पे। कौन सा डिफिकल्ट वाला है सर? सर अब डिफिकल्ट वाला तो वो है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज कर दे, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल 5 वोल्ट पे तो चार्ज होगा नहीं। इलेक्ट्रिक व्हीकल कितने वोल्ट पे चार्ज होगा सर? इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज होगा सर 350 वोल्ट पे, क्योंकि जो मेरी जो गाड़ियों में जो बैटरी लगती है ऑन बोर्ड वाली, वो तो बहुत ही भारी होती है, बहुत हैवी भी होती है, और उसको चार्ज करने में भी मतलब 8 घंटे लग जाते हैं। लेकिन उसकी बैटरी भी बहुत ज्यादा बड़ी होती है, ज्यादा अलग अलग बैटरीज के कॉम्बिनेशन होता है। किस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है एक बार जरा देखते हैं। इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज में। यहाँ देखो नीचे की तरफ बैटरी के बारे में बता रहा हूँ कि कितनी सारे बैटरी स्लैक्स लगते हैं वहां पे। यहाँ अगर मैं नीचे की तरफ देखूं, इधर बिल्कुल बॉटम साइड पे देखो, यहाँ पर ये स्लैक्स लगे हुए हैं, स्लैक्स लगे हुए हैं, और यहाँ पे छोटी छोटी बैटरीज कनेक्टेड है। सपोज करो 24 वोल्ट की बहुत सारी बैटरीज कनेक्टेड है, 15 बैटरीज कनेक्टेड है, 24 वोल्ट की 15 बैटरीज कनेक्टेड है। कितनी वोल्टेज हो गई? 24 वोल्ट की 15 बैटरीज इंटू 15, हाउ मेनी वोल्ट, कितना वोल्टेज? 360 वोल्ट। और इतनी वोल्टेज रिक्वायरमेंट होती है टेस्ला की गाड़ी को चलाने के लिए, इतनी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है महिंद्रा की गाड़ी को चलाने के लिए। चलो महिंद्रा थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि छोटी गाड़ियां बनाता है, टेस्ला बड़ी गाड़ियां बनाता है, टेस्ला बड़ी गाड़ियां बनाता है, तो महिंद्रा थोड़ा छोटा हो गया। तो उसी चीज के लिए यहाँ पे बैटरी स्लैक्स की आवश्यकता होती है। in the just the bottom side of this car, in the bottom side of this car we needed a battery slack. now अब उसके बगल में एक पड़ा है मेरा चार्जर, ये देखो मेरा चार्जर ये रहा, यहाँ बैठा है मेरा चार्जर। अब चार्जर कैसा दिखता है लास्ट में वो भी दिखा दूंगा, चार्जर कैसा दिखता है लास्ट में वो भी दिखा दूंगा, एक लेबोरेटरी प्रोटोटाइप लेकर आए हो आपके लिए। तो यहाँ पे पड़ा है मेरा चार्जर, एक चार्जर है मेरा जो कि इन बैटरीज को चार्ज कर रहा है। मैंने प्लग में लगा दिया और वो चार्ज करने की कोशिश कर रहा है। अब पूरा जो सिस्टम डिपेंडेंट है वो इस चीज पे डिपेंडेंट है कि बैटरी चार्ज तो हो जाए, बैटरी चार्ज तो हो जाए। लेकिन उसके बाद क्या होगा, बैटरी भैया किसको पावर देगी? बैटरी किसको पावर देगी? मेरे व्हीकल के जो इसका टायर है, टायर की जो मोटर है उसको पावर देगी। ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है यहाँ पे, इसको पावर देना भी उसका बेसिक कर्तव्य है, उसका बेसिक उसकी नीड है कि भैया अगर मैं इसको पावर नहीं ना दे पाऊँ तो फिर क्या रीजन रह जाएगा मेरी बैटरी को चार्ज होने का? कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब चलो चलते हैं आगे की तरफ। अब इतना समझ गए कि चार्जर होता है, बैटरी किस तरीके से कनेक्टेड होती है मेरी कार में, इतना तो आप समझ गए। अब जरा थोड़ा सा मैं और आगे की तरफ चल रहा हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ 2 different type of chargers which are present on the car. So there is a car which you are seeing here. There is a car which you are seeing here. This is the onboard charger की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहली बात, I am just discussing the onboard charger in this entire session. ओके, आई रियली होप यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और रियल लाइफ को हम डील करने वाले हैं इंजीनियरिंग से बिल्कुल थोड़ी देर में। सो ऑनबोर्ड, दिस इज माय ऑनबोर्ड चार्जर। ऑनबोर्ड चार्जर इज ऑफ 2 टाइप, दिस इज माय कन्वेंशनल, दिस इज माय 1 टाइप, टाइप 1, एंड दिस इज माय 2 टाइप, टाइप 2। बस 1 टाइप को डिस्कस करेंगे, 2 टाइप उसके बाद में आएगा। पहले 1 टाइप को डिस्कस करेंगे, 2 टाइप उसके बाद में आएगा। पहले 1 टाइप को धीरे धीरे 1 बाय 1 इसको डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से काम करता है। This is all the structure of the 1 by 1 the first type 1 charger.
इसको कहते हैं मेरा, ये मेरी पूरी की पूरी गाड़ी में चार्जर जो छोटा सा पार्ट बताया था यहाँ पे, ये जो चार्जर लिखा है यहाँ पे, ये जो छोटा सा पार्ट बताया चार्जर, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, इसकी पूरी स्टेजेस यहाँ पे लिखी हुई है। प्लीज जरा ध्यान से समझिए इसको क्या कहना चाह रहा है, जरा ध्यान से समझिए इसको क्या कहना चाह रहा है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली स्टेज अब जरा देख रहा हूं मैं कि मेरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ने किस तरीके से प्रभाव डाला है मेरे इस पूरे सिस्टम पे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ये, यहाँ पे बिल्कुल रेक्टिफायर भी दिख रहा है मेरे को, यहाँ पर भी कुछ दिख रहा है इंडक्टर रेजिस्टेंस जैसा, तो ये है क्या, अब होता ये है भाई लोगों, होता ये है कि यहाँ पर सबसे पहले ये तो एसी सप्लाई तो आ गई, देखो यहाँ से मेरी एसी सप्लाई तो आ गई। अब जब एसी सप्लाई आ गई उसके बाद मेरा एक चीज लिखी है, पावर फैक्टर करेक्शन। व्हाट इज द पावर फैक्टर? द पावर फैक्टर करेक्शन इज द फिनोमिना इन विच वी कनेक्ट अ कैपेसिटर लाइक दिस to reduce the instability in the system which are present previously। जो मेरी सप्लाई में हो सकता है कुछ इंस्टेबिलिटी हो सकता है कुछ ऐसे हार्मोनिक्स हो जो मेरे सिस्टम की बैटरी को चार्ज करने में प्रभावित कर सके या फिर उसको फूंक सके, सीधी अपनी भाषा में बोलते हैं, उसको फाड़ दे और उसको फूंक दे। उससे बचने के लिए, उन हार्मोनिक्स से बचने के लिए मुझे करना पड़ेगा पावर फैक्टर करेक्शन। आई रियली होप आप समझ गए होंगे पावर फैक्टर करेक्शन क्यों किया जाता है। पावर फैक्टर करेक्शन एम्स टू improve the power factor and the power quality of the wave। It aims to improve the power factor and the power quality of the wave। प्लीज यहाँ तक आई रियली होप आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर? पावर फैक्टर improves the power quality of my wave। This is the first thing। Okay, now after this what will happen? There is a diode is connected here like this is nothing but your full bridge rectifier। Which will give DC at the output, so at this point you have understood कि आपको मिल गई DC। At this point you have understood कि आपको मिल चुकी है DC, डायरेक्ट करंट मिल गया। अब भाई डायरेक्ट करंट को सीधा लगा दो, बैटरी से चार्ज हो जाएगी। डायरेक्ट करंट मिल गया, मुझे डायरेक्ट करंट चाहिए, सीधा लगा देते हैं बैटरी से तो चार्ज हो जाएगी। लेकिन मैंने सीधा नहीं लगाया, मैंने क्या लगा दिया, बीच में एक आइसोलेटेड कन्वर्टर। से पहले एक बार जरा पावर फैक्टर को रिवाइज और कर लो। अब पावर फैक्टर इसने क्या किया, सपोज करो मेरे पास ट्रांसमिशन लाइन की बात कर लेता हूँ, ये मेरी सप्लाई है, सप्लाई से ट्रांसफार्मर में आए, ट्रांसफार्मर से मैं मेरे अप्लायंसेस में चला गया, दिस इज माय मोटर, बल्ब, टेलीविजन। तो इसका पावर फैक्टर जो है वो पुअर है। अगर पावर फैक्टर पुअर होगा तो नॉर्मली मेरी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, पावर फैक्टर पुअर होगा तो मेरी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। यहां मैंने पीएफसी लगा दिया, पावर फैक्टर कंट्रोल, पावर फैक्टर कंट्रोल। अब यहाँ पे पावर फैक्टर पुअर है तो करंट, दिस इज वोल्टेज और करंट में के फेज में डिफरेंस भी होगा, यहाँ पे वोल्टेज और करंट का फेज सेम होगा। तो here it will give the excellent power factor and the power saving will be increased। so this is the idea behind the power factor। diode bridge rectifier समझ गए। अब इसके बाद मैं आगे चल रहा हूँ the isolated converter। about the isolated converter। I really hope you have understood the concept of this power factor and the diode bridge rectifier। this is what we are dealing the electric vehicle। I really hope you are understanding what we are doing here। I really hope guys you are understanding what we are doing here। We are just understanding the concept of electric vehicle charger। electric vehicle charger को चार्ज करने के लिए मुझे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी गतिविधियां करनी होगी। पहली दो गतिविधियां मैं समझ चुका हूं, मैंने एक रेक्टिफायर लगाया, रेक्टिफायर से पहले मैंने पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर लिया, ये मेरी कहानी है सबसे बड़ी। उसके बाद क्या कहानी है, आइसोलेटेड कन्वर्टर। अच्छा अब मेरी जो डीसी आ गई, अच्छा ध्यान से सुनना, मेरी जो डायरेक्ट करंट आ गया मेरे पास, उसको मैं डायरेक्टली नहीं डाल सकता क्या बैटरी में? क्यों नहीं डाल सकता, जरा सोच के देखो, थोड़ा समय देता हूं आप लोगों को, सोच के देखो कि मेरी इस डायरेक्ट करंट को क्यों नहीं डाल सकता मेरे बैटरी में। मैं कितनी भी प्रिकॉशन कर लूं, लेकिन इस डायरेक्ट करंट को मैं बैटरी में नहीं डाल सकता, क्योंकि मेरी इस डायरेक्ट करंट, इस आइसोलेटेड कन्वर्टर में एक होता है मेरा ट्रांसफॉर्मर, इस आइसोलेटेड कन्वर्टर में एक होता है मेरा ट्रांसफॉर्मर, जो कि मेरे सिस्टम में आइसोलेशन प्रोवाइड करा देता है। इसीलिए इसका नाम दिया गया है आइसोलेटेड
इसीलिए इसका नाम दिया गया है आइसोलेटेड कन्वर्टर। इट प्रोवाइड्स द आइसोलेशन। और भी बहुत सारी कहानी है। दिस इज माय आइसोलेटेड कन्वर्टर। और इसके बाद ये बैटरी लगाई जाती है। इसके बाद ये बैटरी लगाई जाती है फॉर द चार्जिंग। इसके बाद आफ्टर दिस आइसोलेटेड कन्वर्टर ये बैटरी लगाई जाती है फॉर द चार्जिंग। अगर देखो ये बैटरी कहाँ पे लगी है, आइसोलेटेड कन्वर्टर के आगे लगी है ना। बैटरी कहाँ लगी है, आइसोलेटेड कन्वर्टर के आगे लगी है। तो उसके बाद ये बैटरी लगाई गई है, लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी। अब देखो जरा इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे किस तरीके से काम आई। देखो यहाँ पर क्या है, हमको यहाँ पे क्या लगाना है, एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर। इस हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर की क्या रिक्वायरमेंट आ गई, इस हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर की ये रिक्वायरमेंट आ गई कि भैया ये जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की वजह से ही इसको आइसोलेशन प्रोवाइड कराया जा सकता है, नहीं तो वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड हो जाएगा। हमको इंडक्टिवली कनेक्टेड चाहिए। अब यहाँ पे इसके एक दो एडवांटेजेस ये हो जाते हैं। एक तो ये आइसोलेशन प्रोवाइड करा गया। सपोज करो मेरे इनपुट पे कोई बहुत ही हाई स्पाइक आ गई या फिर बहुत ही हाई वोल्टेज मेरे पास आ गई इनपुट पे, तो वो मेरी बैटरी को डायरेक्टली कनेक्टेड। अब गाड़ी में बैटरी तो कनेक्टेड है, एक एक बार में चेक तो करूंगा नहीं। एक एक बार में चेक तो करूंगा नहीं कि भाई करंट ज्यादा हुआ कम हुआ कितना हुआ। गाड़ी तो मैं चलाने पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा ना। अब उस पॉइंट पे देखो, समझने की कोशिश करो। अगर कोई वोल्टेज स्पाइक आ गई चार्जिंग के टाइम पे, तो मैं क्या करूंगा, मैं गाड़ी तो खोल के बैठ नहीं सकता कि भैया क्या खराबी आ गई। तो इसीलिए मेरा आइसोलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। इसीलिए आइसोलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। और इसी आइसोलेशन के लिए हमें लगाना पड़ता है एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर के कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है, दोनों डिस्कस करेंगे अभी। अब उससे पहले मैंने क्या लगाया है यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट दिस S1 S3 S2 S4 इज नथिंग बट अ इन्वर्टर विच इज कन्वर्टिंग दिस DC इनटू AC। अब याद आया कुछ कुछ भैया, अभी अभी थोड़े दिन पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो सुबह या शाम की क्लास में, अब समझ में आया। अच्छा इन्वर्टर यहाँ पे यूज होता है दुनिया में। दुनिया में इन्वर्टर यहाँ पर यूज हुआ है। कब से पढ़ते रहे, फोर्स कम्यूटेशन प्रोवाइड कर दी, फोर्स कम्यूटेशन प्रोवाइड कर दी, समझ में नहीं आया। इन्वर्टर का असली मीनिंग तो ये है, इन्वर्टर यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। रेक्टिफायर तो फिर भी चलो तुक्का मान लेते थे कहाँ पे आए, इन्वर्टर का इस्तेमाल तो पहले पता ही नहीं था, तो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है इन्वर्टर सबसे पहले। और ये जो इन्वर्टर के लिए जो स्विचेस यूज होते हैं S1 S2 S3 S4, ये होते हैं मॉसफेट। ये होते हैं मॉसफेट। दिस इज मॉसफेट। अच्छा अब बताओ जरा मॉसफेट क्यों यूज होते हैं, जरा सोच के देखो। मॉसफेट ही क्यों यूज होते हैं, हम IGBT क्यों यूज नहीं करते। IGBT की वर्किंग फ्रीक्वेंसी होती है 20 किलोहर्ट्ज। IGBT की वर्किंग फ्रीक्वेंसी होती है 20 किलोहर्ट्ज, बस मॉसफेट कैन गो अप टू 2 मेगाहर्ट्ज। मॉसफेट कैन गो अप टू 2 मेगाहर्ट्ज और मोर भी जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मॉसफेट कैन गो मोर देन 2 मेगाहर्ट्ज। अब इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी से फायदा क्या होगा सर, फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ा रहे हो, क्यों हम इतना परेशान हो रहे हैं। सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा तो मेरा ये जो इंडक्टर है, ये इंडक्टर है और ये ट्रांसफार्मर की जो कॉइल है और कोर रिक्वायरमेंट है वो रिड्यूस हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा तो इंडक्टर और ट्रांसफार्मर की कोर रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो जाएगी। अगर रिड्यूस हो जाएगी तो इतना बड़ा चार्जर लेना पसंद करोगे या फिर इतना छोटा वाला। ऑब्वियसली छोटा वाला चार्जर लेना पसंद करोगे, क्योंकि उसकी कोर रिक्वायरमेंट और कॉइल अगर रिड्यूस हो गई तो ये हल्का हो जाएगा एक चार्जर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से, और ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो जिसकी कम फ्रीक्वेंसी है वो भारी रहेगा। तो कौन सा लेना पसंद करोगे, ऑब्वियसली सफेद वाला, क्योंकि ये हल्का है। इसीलिए हम इंक्रीज करते हैं फ्रीक्वेंसी को, इसीलिए हम इंक्रीज करते हैं फ्रीक्वेंसी को इन एनी सिस्टम। ओके अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर तो AC आ गया। AC का आउटपुट यहाँ पे लिया मैंने, ये क्या है AC को मैंने रेक्टिफायर सर्किट से कन्वर्ट कर लिया वापस से DC में, और DC में ले जाके इस बैटरी को मैंने चार्ज कर दिया। इस बैटरी को मैंने चार्ज कर दिया है DC में ले जाके। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। अच्छा चलो एक और एडवांटेज बताता हूँ, एक और एडवांटेज बताता हूँ। सपोज करो मेरी इनपुट है,
मेरी इनपुट है कुछ वैल्यू, इनपुट कितनी है, सपोज करो 12 वोल्ट है, सपोज कर लिया मैंने 12 वोल्ट है मेरी इनपुट, ठीक है। अब इनपुट मेरी 12 वोल्ट है, सपोज कर रहा हूं मेरी सप्लाई से जो आ रही है उसको मैंने सपोज कर लिया मेरी 12 वोल्ट इनपुट है। अब 12 वोल्ट से क्या मैं 48 वोल्ट की बैटरी चार्ज कर सकता हूँ? क्या मैं इतना बड़ा बूस्ट कन्वर्टर लगा सकता हूँ? बूस्ट कन्वर्टर तो नहीं लगा सकते सर आप। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इतना बड़ा बूस्ट कन्वर्टर लगाऊंगा तो मेरे सिस्टम में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, इंस्टेबिलिटी आ जाएगी अगर मैं इतना बड़ा बूस्ट कन्वर्टर लगा दूंगा। तो इसलिए मुझे जरूरत किसकी पड़ेगी? इस हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर की, जिससे मैं नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर नीचे करके, नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर नीचे करके मैं अप्रोक्सीमेटली 48 के आसपास वैल्यू ले आऊंगा, ताकि मेरी डीसी वोल्टेज उतनी चार्ज हो जाए, ताकि मेरी डीसी वोल्टेज उतनी मेरी चार्ज हो जाए। So this is the basic idea behind the isolated converter. I really hope you are liking it. If you are liking it, then please share this video with your friends and please hit the like button. Okay, अब आगे चलते हैं। So this is the complete application of the power electronics into the electric vehicle charging, into the electric vehicle charging. This is the complete application you are here. Now अच्छा आप देखो पीछे देखो जरा, एक और जरा एक कहानी और है यहाँ पे, एक और कहानी है। ये क्या कहानी है जरा सोच के देखो। डीसी डीसी बाई डायरेक्शनल कन्वर्टर, बाई डायरेक्शनल मतलब ये दोनों तरफ पावर फ्लो कराना चाहिए, दोनों तरफ पावर फ्लो कराएगा तो वो कहलाएगा बाई डायरेक्शनल कन्वर्टर। अब डीसी डीसी बाई डायरेक्शनल कन्वर्टर की क्या जरूरत पड़ गई? अब मैं बैटरी तक तो पहुंच गया था सर मैं बैटरी तक तो पहुंच गया था। दिस इज माई बैटरी, दिस इज माई बैटरी। अब बैटरी से मुझे कहा जाना है? बैटरी से मुझे जाना है मेरी व्हीकल के, मेरे व्हीकल की जो मोटर है उस तक पहुंचना है। तो मुझे पहुंचना है यहां तक, मुझे पहुंचना है मेरी मोटर तक। अब इस मोटर तक मैं किस तरीके से पहुंच सकता हूं? दो तरीके से पहुंच सकता हूं। मुझे इस डीसी को सपोज करो मेरी इस वोल्टेज के लेवल को इंक्रीज करना होगा। बैटरी कितने पे थी? 360 पे थी, और मोटर की रेटिंग कुछ और हो सकती है, डीसी लिंक वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, वो डीसी लिंक वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। और सपोज कर लो कि ये वैल्यू है मेरी 400 वोल्ट, ये है मेरी 400 वोल्ट। अब इस 360 को मैं बूस्ट अप करके, 360 को मैं बूस्ट अप करके मैं 400 में कन्वर्ट कर सकता हूं। किस तरीके से कर सकता हूं सर? बूस्ट ऑपरेशन तो बड़ा ही आसान है, मुझे पूरा आता है। चॉपर मेरे को अंकित सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है। मैं बूस्ट ऑपरेशन तो चुटकियों में कर दूंगा। जरा समझने की कोशिश करो कि बूस्ट ऑपरेशन किस वजह से हुआ है। सिंपल सी बात, S1 को टच मत करो, S1 को टच मत करो। एक बार S2 को ऑन करो और दूसरी बार S2 को ऑफ करो। जब ऑन करोगे तो इंडक्टर विल चार्ज फ्रॉम दिस पाथ, जब ऑफ करोगे इंडक्टर विल डिस्चार्ज फ्रॉम दिस पाथ थ्रू द दिस डीसी लिंक वोल्टेज, थ्रू दिस डीसी लिंक वोल्टेज। इन दिस पॉइंट व्हाट इज हैपनिंग हियर? when the battery is supplying power from its battery terminals to the vehicle के मेरे टायर पे, when the battery is supplying power from the battery terminals to the motor, it is the accelerating in nature, it is accelerating in nature। इसका मतलब गाड़ी मेरी चल रही है, गाड़ी चलते चलते मैं एक्सीलरेशन पे बटन दबा रहा हूं, उस टाइम पे मेरी बैटरी पावर प्रोवाइड कर रही है। कहां पर? मेरे मोटर पे। उस टाइम पे मेरी बैटरी प्रोवाइड करा रही है पावर मेरे मोटर पे। अब जरा ध्यान से समझना, आप कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है। कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट ये आने वाला है, सपोज करो अब मैं डी एक्सीलरेशन प्रोवाइड करा रहा हूं। मतलब अगर मैंने एक्सीलरेटेड तो है, 100 पे चल रही गाड़ी मेरी, ऑडी भाग रही है, अपनी गाड़ी भाग रही है बहुत तेज, 100 पे चल रही है गाड़ी। अब 100 पे चल रही है गाड़ी, लेकिन मैंने क्या करा? डी एक्सीलरेशन प्रोवाइड करा दिया। जब मैंने डी एक्सीलरेशन प्रोवाइड करा दिया तब क्या हुआ कहानी में? तब ये हुआ कहानी में कि जो मेरी जो हायर पावर है, जो मेरी हायर पावर है, जो मेरा डीसी लिंक वोल्टेज इज हायर, अब उसको मैं उस हाईएस्ट पावर को मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं टू चार्ज माय बैटरी आल्सो with this particular function, with this DC-DC bidirectional converter. This thing is possible by switching on the S1. By switching on the S1, this function is possible. इस फंक्शन को पॉसिबल किया जा सकता है by switching on the S1 and switching on, completely switching on रखो इसको,
और इसको ऑन ऑफ करते रहो, तब ये काम पूरा हो सकता है। बिल्कुल उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, जो हाई वोल्टेज है यहाँ वाला, कहा वाला, डीसी लिंक वाला हाई वोल्टेज इज गॉट कन्वर्टेड बैक टू द battery and will charge the battery in the form of regenerative braking operation. This is the regenerative braking operation. सुना होगा अच्छे से आपने, regenerative braking कहाँ पे इस्तेमाल होती है, मोटर के केस में, वही चीज यहाँ पर भी है। तो we are utilizing the regenerative energy to charge the battery voltage again with the higher moving vehicle motor. Okay, so this is the basic concept of regenerative braking operation in the electric vehicle. So this is what is very important, and the how the power electronics is making its parts, very small parts, switch, inductor, capacitor, all the small parts are very important to establish the connection, to reduce the fuel consumption obviously, because इस पूरे के पूरे काम को करने के पीछे हमें प्रेरणा कहाँ से मिली, हमें मिली कि हमको अर्थ को बचाना है अपनी। ओके, सो इस डायग्राम को मैं वापस लेके आया हूँ, एक बार जरा हल्का सा व्यू और ले। ये तो मेरा हो गया डिस्कशन अब तक मेरे पहले सर्किट के बारे में। पहले सर्किट के बारे में, ये जो पुराना जो मेथड होता है कन्वेंशनल मेथड कहते हैं इसको, एक नया हमने एक और सर्किट बनाया है, क्रिएट किया है, जिसमें क्या करना है, ये जो अलग अलग स्टेजेस थी ना, पावर फैक्टर करेक्शन की अलग स्टेज, आइसोलेटेड कन्वर्टर की अलग स्टेज, डीसी डीसी बाई डायरेक्शनल कन्वर्टर की अलग स्टेज, इन सारी स्टेज को हमने ज्वाइन कर दिया, इन सारी की सारी स्टेजेस को हमने ज्वाइन कर दिया है और एक नॉन आइसोलेटेड कन्वर्टर बनाया है। नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ नॉन आइसोलेटेड कन्वर्टर? द नॉन आइसोलेटेड कन्वर्टर विल ब्रिंग यू अ very lesser losses as compared to the transformer which is present in the isolated converter. नॉन आइसोलेटेड कन्वर्टर के लिए एक ये सर्किट डायग्राम देखिए, ये सर्किट डायग्राम हमने बनाया है, और ये सर्किट डायग्राम is capable of doing all the operation including the battery charging operation, including the transfer of energy from the battery to the vehicle rotor, and including the transfer of energy from the vehicle rotor to the battery. All the three operation are being provided by this simple structure. Then this is the beauty of power electronics. This is the beauty of power electronics, and this is the beauty of the system कि आपने कितने बेहतर और कॉम्पैक्ट वे में इस पूरे के पूरे सिस्टम को डिजाइन किया है। ओके, सिमिलर एक्शन है, पावर फैक्टर पहले क्लियर हो गया। यहां पर इधर देखो मेरा कर्सर जहां चल रहा है, ये मेरा क्या लगा है, डायोड ब्रिज रेक्टिफायर। डायोड ब्रिज रेक्टिफायर के स्विच 1 2 3 4 अलग अलग मोड्स में कनेक्ट करना है इनको। ऑल आर मॉसफेट्स, अलग अलग मोड्स में कनेक्ट करके, अलग अलग बोर्ड्स में कनेक्ट करके इनका इस तरीके से ऑपरेशन करा गया है कि पहले ये कर देंगे बूस्ट और बैटरी को चार्ज, पहले ये कर देंगे बूस्ट और बैटरी को चार्ज। बैटरी कितने पे चार्ज है, 350 वोल्ट पे। इनपुट कितना होता है, 230। बूस्ट करके बैटरी को चार्ज कर देंगे इन द स्पेसिफिक लिमिटेशन, ये बैटरी को चार्ज कर सकते हैं विद द ड्यूटी साइकिल ऑफ 0.6, विद द ड्यूटी साइकिल ऑफ 0.6 ये बूस्ट ऑपरेशन करेंगे और ये बैटरी को चार्ज करेंगे। दिस इज द सेकंड पॉइंट। नाउ द सेकंड पॉइंट इज, ये जो बैटरी चार्ज है इसको मैं VHV, दिस इज व्हाट द डीसी लिंक, दिस इज माय डीसी लिंक, जो यहाँ पे डीसी लिंक दिख रहा था ना, वही डीसी लिंक यहाँ पे VHV करके शो हुआ है। ये एक और ऑपरेशन करेगा और बूस्ट ऑपरेशन से VHV तक पावर पहुंचा देगा और VHV वापस से इसको भी। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड फॉर मी टुडे। This is the onboard, this charger is only this part, only this onboard charger part. This complete thing is the charger, what is here, it is the onboard charger, basically to charge the batteries which are present here. ये सारी जो कहानी थी ये थी मेरी AC चार्जिंग के लिए, ये सारी जो कहानी थी ये थी मेरी AC चार्जिंग के लिए। DC चार्जिंग भी होती है, इसको लेंगे अगले सेशन में, इसको लेंगे अगले सेशन में। तो उम्मीद है कि सेशन पसंद आया होगा और काफी सारी चीजें सीखी होंगी आपने इस पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल सिस्टम को लेकर, और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगा होगा आप लोगों को। अगर अच्छा लगा तो मुझे बताइए और मेरे कोड को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम गेट के लिए तो पढ़ा ही रहे हैं और UPPSC NLC SSC JEN सब हर चीज के लिए पढ़ाई करा रहे हैं आपको लिए।
और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट लॉग इन टू unacademy.com. Just pick your goal and choose GATE and ESE. This is the goal you have to choose. First of all, click on the get subscription button. If you click on the get subscription button, you have this option. Firstly, you have to choose कि आपको कितने महीने का आपको कोर्स चाहिए और कितने महीने का कोर्स आपके लिए एडवांटेज हो सकता है. दिस इज द रियल लाइफ एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो था. उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा. एंड आफ्टर चूजिंग ऑल दीज थिंग यू हैव टू क्लिक हेयर and apply my code KHEMLIVE. With the code KHEMLIVE you will get 10% discount. 10% discount on each and every subscription of Unacademy Plus. Okay, this is the code you have applied and you got the 10% discount. Any card, debit card, credit card आप choose कर सकते हैं. फेसबुक ग्रुप पे जुड़ सकते हैं जहाँ पे अराउंड 150K स्टूडेंट्स हैं और वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं. इफ यू वांट, जो हम मेरी क्लासेस चलती है या फिर किसी और की भी क्लासेस चलती है पूरे ग्रुप पे, तो उनके अगर आप पीडीएफ नोट्स चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स, तो वहां पे आपको मिल जाएंगे इजीली. तो स्वागत तो कर लीजिए हमारा. उम्मीद है सेशन बहुत पसंद आया होगा और सेशन पसंद आया होगा तो हिट करो लाइक, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द सब्सक्राइब बटन. सो बड़ा ही अच्छा लगा आप लोगों से सेशन शेयर करके. उम्मीद है कि ये जो मेरी रिसर्च है वो आपके थोड़े काम आ सकती है और आप बहुत ही ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं इसको. ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो. आई रियली होप यू हैव लाइक्ड माय सेशन. If you have liked my session, then please share this session with your friends and do subscribe the channel if you are new, and be happy always. Thank you so much guys.